بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات۔ مضمون ہے اردو بطور دفتری زبان اور ہمارا موضوع ہے تاثریت۔ عزیز طالبات، یہ مضمون اس لیے اختیار کیا گیا کہ ہم پرکھ سکیں کہ کیا اردو میں یہ اہلیت موجود ہے کہ وہ دفتری زبان کا درجہ حاصل کر سکتی ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ کسی بھی زبان کی اہمیت اصطلاح کے حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ علمی نظریہ سازی اصطلاح سازی کے بغیر ناممکن ہے۔ اس لیے تھیوری جو ہے وہ دراصل اصطلاح سازی کا ہی ایک کھیل ہے۔ لہٰذا کسی بھی علمی، تحقیقی اور فلسفیانہ تحریر میں درست اور قطعی ابلاغ کے لیے اصطلاح اساسی کردار ادا کرتی ہے۔ اصطلاح ہمہ جہت ہونے کے ساتھ ساتھ متعدد اور متنوع طریقے سے استعمال ہو سکتی ہے۔ اصطلاح ایک طرف تو علم، تھیوری یا شے کے لیے ایک نیم پلیٹ ثابت ہو سکتی ہے تو دوسری جانب یہ علمی شارٹ کٹ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ چند الفاظ کا مجموعہ۔ جب ہم کوئی ایسا لفظ سنتے ہیں فوراً ہمارے ذہن میں اس چیز کا تصور آ جاتا ہے۔ تصور یا شے سے وابستہ تمام تحقیقی مراحل اور جملہ علم جزیات کا تناظر مہیا ہو جاتا ہے۔ شناخت کا علمی انداز بھی اصطلاح ہی کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یوں تو اصطلاح جو ہے اس کے معنی غیر جانبدار ہوتے ہیں اور صرف اپنے لغوی مفہوم کے تابع ہوتے ہیں، لیکن جب وہ لفظ اصطلاح بن جاتا ہے تو اس لفظ کے معنی لغت کی سطح سے بلند ہو کر علم کا مسند نشین ثابت ہوتے ہیں۔ اگر آسان زبان میں بات کی جائے تو وہ اصطلاح جو ہے اس کے معنی ہمہ جہت ہو جاتے ہیں۔ اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ اقبال اور غالب دو بڑے شاعر ہیں اور ان کے حوالے سے جو بھی کوئی بات کرتا ہے ہم اس کو اقبالیات، غالبیات، ماہر اقبالیات، ماہر غالبیات کہتے ہیں۔ اس سے ہماری کیا مراد ہے؟ یعنی جو کتب ان کے حوالے سے لکھی گئیں، سوانح پہ، ذات و صفات پہ، شعری محاسن پہ، اسلوب پہ اور دیگر امور سے وابستہ تحقیقی، تنقیدی اور تحسینی کتب اور جو مقالات تحریر کیے گئے، جو مضامین لکھے گئے، وہ سارے جو ہیں وہ اس اصطلاح کے معنوں میں آ گئے۔ اصطلاح جس لفظ سے بنتی ہے یا الفاظ سے تشکیل پاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ لفظ اس مقصد کے لیے استعمال نہ ہوتا ہو، لیکن جب ہم اس کو بطور اصطلاح اختیار کرتے ہیں تو اس کو ایک نئی پہچان مل جاتی ہے، اس کا ایک نیا تشخص بن جاتا ہے اور پھر اس لفظ کا علمی وقار بھی بلند ہو جاتا ہے۔ ادب کے لحاظ سے آپ دیکھیں
تحقیق کے لحاظ سے دیکھیں، تنقید کے لحاظ سے دیکھیں، ہر شعبہ زندگی میں اصطلاحات بہت ضروری ہیں۔ جیسا کہ شاعری کے ساتھ تشبیہ، استعارہ اور کئی دوسری اصطلاحات کا تصور ابھرتا ہے۔ غزل کا لفظ استعمال ہم کرتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ ایسی شاعری یعنی جس کا پہلا مصرع جو ہے وہ ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتا ہے اور پھر اس کے تمام اشعار جو ہیں وہ ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ غزل شاعری کی وہ صنف ہے جس کے ہر شعر کا مضمون جدا ہوتا ہے۔ تو عزیز طالبات، اصطلاح جو ہے وہ ایک اپنے اندر خاص معنی رکھتی ہے۔ یوں ہمیں لگا کہ اصطلاح جو ہے وہ اپنے اندر خاص معنی رکھتی ہے۔ جی طالبات، اصطلاح کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ اصطلاح اپنے اندر خاص معنی رکھتی ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس میں جو اصطلاح زیر غور ہے وہ تاثریت ہے۔ تاثریت کا تعلق دراصل مصوری سے ہے اور اس کی نوعیت جو ہے وہ خالصتاً خارجی ہے، لیکن جب یہ تحریک ادب میں رائج ہوئی تو اس کا رخ داخل کی طرف مڑ گیا۔ 19ویں صدی کے نصف آخر میں فرانس میں مصوروں کا ایک گروہ سامنے آیا۔ اس تحریک میں بنیادی حیثیت اس تاثر کو حاصل ہے جو دیکھنے اور پڑھنے والوں کے ذہن میں ابھرتا ہے۔ یعنی اس اصطلاح کا تعلق تاثریت سے تو ہے ہی، تاثریت کا تعلق ادب سے تو ہے ہی، لیکن اس کا جو اصل تعلق ہے وہ مصوری سے ہے۔ اور جب شروع میں یہ تحریک شروع ہوئی تو اس کا تعلق جو تھا وہ خارج سے تھا۔ اردو انسائکلوپیڈیا میں جب ہم تاثریت کی تعریف دیکھتے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ جمالیات کا نظریہ، کہ فن کا مقصد کسی چیز، منظر
या वाक़े के महज उस तासर को पेश करना है जो फौरी तौर पर फनकार कबूल करता है। एक तासरी फनकार किसी चीज़ को उसकी हकीकी शक्ल में पेश करने की बजाय महज को पेश करने की सही करता है, कोशिश करता है जो रोशनी और रंगों के साथ खतूत की तब्दीली के साथ उस चीज से जाहिर होता है। मुसव्वरी में तासरियत उस फनी अमल को कहते हैं जो चीज़ों को उनकी फौरी ज़ाहरी शक्लों में पेश करता है और उसकी बजाय उन चीज़ों की तबीयती साख्त और असलियत को कोई वक़्त नहीं देता। तासुरियत और असर पजीरी को अहमियत देता है। उन मुसव्वरों को चीज़ों की हूबहू नकल उतारने से लगाव ना था, वो घटती बढ़ती और जाविये बदलती रोशनी से मुरतब होने वाली कैफियत की तस्वीर कशी करना चाहते थे। यह उनकी ख्वाहिश थी कि उस तासर को गिरफ्त में लाया जाए जिसने अचानक या वक्ती तौर पर उनके बातन में कोई उबाल पैदा किया हो। अजीज तालबात, ये तो हमने जो बात की वो तासरियत के हवाले से बात की, लेकिन अगर हम तनकीद में देखें तो तनकीद में इसके लिए तासुराती तनकीद का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। अदब व नक़द में तासुर या तासुरियत या तासुराती तनकीद का आगाज़ अगर हम देखें तो कोलाडे मोनेट की पेंटिंग, जिसको हम इम्प्रेशन जो उसकी पेंटिंग का नाम था इम्प्रेशन से किया जा सकता है। ये जो पेंटिंग थी ये 1874 में नुमाइश के लिए पेश की गई थी। मुसव्वरी में तासराती स्कूल के मुसव्वरों को इस बात से दिलचस्पी थी कि रोशनी में तब्दीली से किसी शय के रंगों की क्या कैफियत हो जाती है। जैसा कि पहले भी हमने गौर किया कि तासुरियत में दरअसल उस तासुर को पेश किया जाता है जो रोशनी और रंगों के खतूत की तब्दीली के साथ जाहिर होता है। तो मुसव्वरी में भी जो तासराती स्कूल से वाबस्ता हैं, उन मुसव्वरों को इस बात से दिलचस्पी थी कि रोशनी में तब्दीली से किसी शय के रंगों की कैफियत क्या हो जाती है। तासुरात और तासराती जैसी इस्तिलाह का तअल्लुक मुसव्वरी के बाद अदब में भी हो गया। अदबी तनकीद में अगर हम देखें, यानी अभी तक जो हमने गौर किया वो मुसव्वरी के साथ वाबस्ता इस्तिलाह का था। अदबी तनकीद में हम तासुर पर गौर करें, तासुर आफरीनी पर गौर करें या तासुराती तनकीद जैसे अल्फाज फ्रांसीसी तासराती मुसव्वरों के बरक्स हैं। तासराती तनकीद में सिर्फ और सिर्फ तख्लीक से अखज़ शुदा तासुरात से ही दिलचस्पी रखी जाती है, जो इस लिहाज से ज़ाती और ज़ौक़ी है कि तासुराती नक्काद को अदब के समाजी किरदार, मकासद और अफादा वगैरह से कोई दिलचस्पी नहीं होती। अजीज़ तलबा व तालिबात, इस हवाले से तासुराती तनकीद के हवाले से हम दो अमरीकी जो नाकदीन हैं, जो नक्काद हैं, इनमें से एक का नाम है जोएल स्पिनगारा और दूसरा है जॉन क्रो रैनसम।
उन्होंने सबसे पहले तख्लीक से खुशगवार तासुर अखज़ किया और फिर उन तासरात को मुनासिब अल्फाज में बयान कर दिया। बस यही तासराती तनकीद का फरीज़ा है। और फिर इन नाक़दीन ने इसे क्रिएटिव क्रिटिसिज्म का नाम दिया। तासुराती तनकीद में समाज, मजहब, इखलाक, इक्तिसादियात, रूहानियत, गर्ज के किसी चीज़ से मदद नहीं ली जाती है। सिर्फ और सिर्फ तख्लीक से हासिल होने वाला तासुर ही दायमी कदर का हामिल होता है, या उस तख्लीक से कोई मसरत हासिल हो रही है, वो तख्लीक किस तरह से कारी पर असरअंदाज हुई। जो तासुर नक्काद के जहन में जन्म लेता है वही तासुराती तनकीद कहलाता है, वही तासुराती तनकीद की जीनत बन जाता है। ये तालबात अभी तक हमने इस्तिलाह साजी में या इस्तिलाहों के मुताले में बहुत सी इस्तिलाहात का मुतालिया किया, जिनमें हमने तमसील को देखा और भी कई इस्तिलाहात हमारे ज़ेरे गौर रहीं। लेकिन तासुरियत इस लिहाज से दूसरी इस्तिलाहों से जुदा है कि पहली पहल इस इस्तिलाह का इस्तेमाल जो है वो मुसव्वरों ने किया था, और तासुरियत पसंद मुसव्वरों का नज़रिया हमारे सामने है कि मनाज़र की नक्काशी का पुराना तरीका, जिसमें जुज़ियात को यकसा तवज्जो और यकसा वज़ाहत के साथ पेश किया जाता है, इस एतबार से नाक़िस है कि आँख हकीकतन इस तरह नहीं देखती। उन्होंने फैसला किया कि वो मंजर का अमूमी तासुर पेश करेंगे। इस तरह इस तसव्वुर का अमूमी तासुर वो होगा जिसे जल्दी में और पहली बार देखने के बाद मुरतब किया गया हो। यानी तासुरियत से क्या अंदाज़ा लगाया गया, बल्कि आँख जिस मंजर को देखती है हकीकतन जो है आँख उस मंजर को उस तरह से नहीं देखती। उस मंजर को देख के जो तासुर उभरता है वो एक अमूमी तासुर है, और वो जो पहली बार जो तासुर मुरतब किया गया है दरअसल वही तासुरियत है। डॉक्टर सुहेल अहमद खां तासुरियत के हवाले से लिखते हैं कि मुसव्वरी की हद तक तो तासुरियत का इस्तेमाल रवा था, लेकिन अदबी मामलात पर इसका इतलाक खलल से खाली साबित ना हुआ, क्योंकि इस इस्तिलाह में बहुत इबहाम पाया जाता है, बहुत मुबहिम है। चुनाचे तासुरियत पसंद होने का ठप्पा बहुत से नए लिखने वालों पर लगाया गया। जी तालबात, तो जैसा कि हमने पहले इस्तिलाह पे गौर किया कि इस्तिलाह होती क्या है। इस्तिलाह किसी भी लफ्ज़ को ख़ास मानी अता कर देती है। तासुरियत की जो तहरीक है वो 19वीं सदी के रबाए आखिर में अलामत निगारी के पहलू ब पहलू मुसव्वरी, मौसीकी और अदब सबको यकसा मुतासर कर रही थी।
کہ इस तहरीक ने सिर्फ मुसव्वरी को मुतासर नहीं किया। 19वीं सदी के अवाखिर में आखिरी जो इसके 25 साल थे उसमें ये ना सिर्फ मुसव्वरी के मैदान में बल्कि मौसीकी और अदब को भी मुतासर किया। मैथ्यू आर्नल्ड, मशहूर नक्काद, और सैनेट पीटर ने चीज़ों को इस हालत में देखने की तरकीब दी जैसी कि वो नज़र आती हैं। इस तसव्वुर को ज़्यादा पुरज़ोर अंदाज में वाल्टर पीटर ने पेश किया। क्या कहता है? वो कहता है कि खारजी दुनिया का तजर्बा चंद तासुरात का मजमूआ है जिसकी नौइयत इनफरादी होती है। इनमें से हर तासुर खिलवत में बैठे हुए शख्स का इनफरादी तासुर है और उसने तन्हा कैदी की तरह उस तासुर को अपने जहन के नहा खानों में कैद कर रखा है। तासुर ज़मानी लिहाज से महदूद है कि वक्त लामुतनाही तौर पर काबिल तकसीम है, इसलिए तासुर का ये लम्हा भी मौजूद होने के बावजूद नामौजूद हो जाता है। ये तासुरियत जो है, अगर उसके हम मफाहिम पे गौर करें तो वो पहला तासुर है और हर शख्स का तासुर किसी एक मंजर को देख के हर शख्स का तासुर जुदा हो सकता है। दरअसल तासुरियत वही है जो एक शख्स अपने जहन के नहा खानों से किसी भी मंजर को देखकर तरतीब देता है, और हो सकता है कि आने वाले मंजर में उसी तरह की कोई तस्वीर, वही अदबी फन पारा जब किसी और के सामने रखा जाए तो उसका तासुर बिल्कुल मुख्तलिफ हो। असल बात यह है कि हमारे तासुर हमारे दिल और जहन की कैफियत से मुतासिर होते हैं। जैसा कि नासिर काज़मी ने कहा था कि दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साईं साईं करता है। तो जो शख्स जिस कैफियत में होगा, जिस जहनी कैफियत से दो चार होगा, उसको वो मंजर वैसा ही नजर आएगा। जो शख्स खुश होगा उसको वो मंजर खुशी देगा, और जो पहले ही उदास बैठा है उसको खूबसूरत मंजर भी तकलीफ का बायस बन जाते हैं। जैसा कि किसी शायर ने कहा था कि किसी को रोशनियों रंग भी दिखाई दिए, किसी को रोशनियों रंग भी दिखाई दिए, किसी ने हरफे सदा को बेअसर देखा। बात ज़हनी कैफियत की है और वही ज़हनी कैफियत के तहत भी आप किसी मंजर से तासुर कशीद करते हैं। यूं महसूस हुआ कि तहरीके तासुरियत की एहसास जो है सिर्फ लम्हाए हाजिर पर मबनी है, यानी जैसे कोई मंजर देखा, जैसे कोई तस्वीर देखी, जैसे कोई फन पारा देखा, उससे जो तासुर आपके जहन में उभरा वही तासुरियत कहलाया। फ्रांसीसी अलामत निगार तासुरियत पसंद ऑस्कर वाइल्ड को तासुरियत पसंद समझा गया। इस तरह की तासुरियत की मिसालें हमें जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ के फिक्शन में, उसके नावलों में आसानी से हम देख सकते हैं। तासुरियत की तहरीक में लम्हे से मुसर्रत इक्तसाब करने का रुझान नुमायां है। इस तहरीक ने
پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تاثریت کا یہ رجحان ہمیں رسکن سے لے کر ولیم مورس تک کی تخلیقات میں ملتا ہے۔ آرتھر شنٹرز نے ویانا میں تاثریت کا الگ دبستان بنایا۔ روس میں چیخوف نے بھی اس کو قبول کیا۔ یعنی تاثریت کی جو تحریک تھی مختلف ممالک میں کے ادیبوں نے اس کا اثر قبول کیا۔ عزیز طلباء و طالبات، تاثریت کے قائل ادیبوں نے اشیاء، اشخاص، واقعات، اعمال و افعال اور مناظر کو واقعیت کے ساتھ پیش کرنے کی بجائے انتہائی شخصی اور موضوعی انداز میں پیش کیا۔ داخلی تاثر کی برتری کو تسلیم کر لیا گیا۔ یعنی ابھی تک اگر ہم غور کریں تو تاثریت دراصل ایک ذہنی تاثر کا نام ہے۔ ہر شخص کسی فن پارے کو دیکھ کے، کسی تحریر کو دیکھ کے جو تصور، جو خیال، جو احساس، جو جذبہ اس کے دل میں جنم لیتا ہے اور لفظوں کی زبان بنتا ہے، وہی تاثریت ہے۔ دراصل یہ داخلی احساسات کا نام ہے۔ شاعر یا ادیب کیونکہ زیادہ حساس ہوتا ہے، اس لیے وہ کسی بھی منظر کو جب دیکھتا ہے تو زیادہ گہرائی میں جاتا ہے اور وہی تاثر اس کے اشعار میں ڈھل جاتا ہے۔ بہت سے شعراء نے مختلف مناظر بیان کیے ہیں۔ ایک ہی منظر کو مختلف شعراء نے مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ جب کوئی انسان کسی کی پریشانی دیکھتا ہے، شاعر، ادیب، تو وہ زیادہ حساس ہو جاتا ہے۔ وہ اس شخص کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرتا ہے اور پھر ان احساسات کو شاعری کی زبان یا نثر کی زبان بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، جنگ کے مشہور شاعر ہیں صفدر سلیم سیال۔ انہوں نے جب ہر طرف دکھ کی داستان دیکھی تو ان کے ذہن میں جو تاثر ابھرا، انہوں نے اس کو شعر کے پیرائے میں بیان کیا کہ مشعلیں غم کی فروزاں تھی ہر ایک گھر میں سلیم، مشعلیں غم کی فروزاں تھی ہر ایک گھر میں سلیم، کس کی دہلیز پہ ہم غم کے مارے جاتے، کس کی دہلیز پہ ہم درد کے مارے جاتے۔ یعنی ہم خود بھی دکھی ہیں، ہم نے جہاں جہاں دیکھا ہمیں سبھی دکھی نظر آئے، لیکن ہر شخص کا تاثر دوسرے شخص سے جدا ہوتا ہے۔ امین الرحمن نے ایک مضمون لکھا تاثریت کے حوالے سے، وہ لکھتے ہیں تاثریت ابتدا میں مصوری کی تحریک تھی اور اس کی نوعیت خالصتاً خارجی تھی، لیکن جب یہ تحریک ادب میں داخل ہوئی تو اس کا رخ داخل کی طرف مڑ گیا۔ زولا اور فلابیئر کی حقیقت نگاری کے خلاف رد عمل پیدا ہوا تو تاثریت کی تحریک اپنے قدم جما چکی تھی اور حقیقت نگاری سے اس نے اپنا رشتہ
तोड़ लिया था। इस तरीका इजहार में मुसन्नफ के साथ उसका वक्ती मूड, शख्सी रवैया और जज्बाती कैफियत असल शय के मुकाबले में पेश करना मकसूद थी, वही चीज़ ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती और तासरियत पसंद उससे इनकार भी नहीं करते, बल्कि वो दावा करते हैं कि हम किसी शय की नकल, तर्जुमानी या अक्कासी नहीं करते, बल्कि शय के बारे में अपने तासुर को पेश करते हैं और यही फन है। यानी किसी भी मंजर के बाद, किसी सानहे के बाद, किसी हादसे के बाद, किसी मंजरनामे के बाद जो तासुर देखने वालों के दिल में उतरता है, दिल में जन्म लेता है, वो तासुरियत है। और इसमें सारी सी बात है उस शख्स की ज़ात, उसका वक्ती मूड, उसका रवैया, यानी उन मामलात में उसका रवैया और जज्बाती कैफियत जो है वही असर में ढलती है। अदबी तनकीद में भी ये इस्तिलाह, जैसे कि मैंने पहले गुजारिश की कि ये इस्तिलाह राइज हुई और इससे मुराद किसी अदब पारे के बारे में नक्काद के तासुरात थे। किसी अफसाने को पढ़कर, किसी नावल को पढ़ के उसकी तफहीम हासिल करने के बाद किसी शेर को पढ़कर जो तासुर नक्काद के जहन में पैदा हुआ वो उसके तासुरात कहलाए। तासुरियत दरअसल वक्ती जज्बा है जो किसी चीज को देखकर उभरता है। हकीकत है कि नक्द अदब में तासुरात से इस्तिफादा किए बगैर चारा नहीं है, लेकिन इससे अदब पारे की हैसियत ज़िमनी रह जाती है। तनकीद महज तासुरात पर मबनी हो तो अपनी अफादियत खो देती है। उर्दू तनकीद में इमदाद अमाम असर और फराग गोरखपुरी ने तासुराती तनकीद से काम लिया है। इब्तिदा में मजनू गोरखपुरी भी इसी अंदाज की तनकीद से वाबस्ता रहे हैं। मजमूई तौर पर जब हम देखते हैं तो तासुराती अंदाज में भी अदब को परखने का रवाज रहा है। फन पारा चाहे कितना ही आला अखलाकी मयार, तहजीब इक़दार और अदबी रवायत की पासदारी का अमीन रहा हो, एक तासुर बहरहाल रखता है जो अहमियत का भी हामिल होता है। अदब को जांचने का कोई भी रवैया इख्तियार किया जाए, तासुरात को हम मनफी नहीं कर सकते। नहीं, कोई भी तनकीद ले लें, उसकी बुनियाद या उसमें कहीं ना कहीं तासुरियत का दखल ज़रूर होता है। हमारा क्लासिकी सरमाया, अदब का सरमाया इस वजह से बन जाता है कि हर दौर के लोग उस फन पारे के बारे में मुस्बत तासुरात का इजहार करते हैं, तो वो फन पारा अमर हो जाता है जिसके बारे में मुख्तलिफ नाक़दीन फ़न, मुख्तलिफ मुहक्किकीन अपनी मुस्बत आरा पेश करें और वो हर दौर में मकबूल हो, तो वो क्लासिक बन जाएगा जिसकी बुनियाद जो है वो तासुरियत पर मबनी होगी।
तनकीद का कोई सा भी अंदाज रवा रखा जाए, उसमें तासुर अपनी जगह अहमियत का हामिल होता है। ये तासुरियत जो है वो दरअसल मजमूई तौर पर देखा जाए तो तासुरियत एहसास का नाम है। वो एहसास, वो तासुर, वो जज्बा जो किसी भी चीज को देखकर, किसी फन पारे को देखकर, किसी मंजर को देखकर, किसी मुसव्वरी की किसी तस्वीर को देख के देखने वाले के दिलो दिमाग में जन्म लेता है, वो तासुरियत कहलाया। उर्दू अदब में अगर तासुरियत के आगाज को देखा जाए तो दरअसल इसका आगाज मुसव्वरी से होता है। अजीज तालिबात, इसके साथ ही हम एक और इस्तिलाह पे गौर करते हैं और है वो रियायत लफ्ज़ी। इससे पहले हम तासुरियत पे बात कर चुके। तासुरियत एहसासात के मजमूए का नाम है, लेकिन एक और लफ्ज़ या एक और इस्तिलाह जो है वो शायरी में इस्तेमाल होती है, जिसको हम रियायत लफ्ज़ी कहते हैं। रियायत लफ्ज़ी क्या है? लफ्ज़ के लिहाज से रियायत, बुनियादी तौर पर ये शायरी की इस्तिलाह है। शायरी में ऐसा पैराया इजहार और असलूब बयान का इत्माम करना जो महज अदाए मतालिब के लिए ज़रूरी नहीं, बल्कि कलाम में मज़ीद हुस्न व लताफत और मज़ीद मानी पैदा करे, सिफ्त कहलाता है। अब इसकी किस्में कितनी हैं? दो हैं, सनाए लफ्ज़ी और सनाए मानवी। सनाए लफ्ज़ी जिससे लफ्ज़ खूबसूरत लगते हैं, लफ्ज़ शान शुको के हामिल होते हैं। बंदिशे अल्फाज जड़ने से नगों के कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। बंदिशे अल्फाज जड़ने से नगों के कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। तो ऐसे लफ्ज़ लाना जो अपनी जगह हमें खूबसूरत लगे, इनको हम सनाए लफ्ज़ी कहते हैं, जिनसे लफ्ज़ में हुस्न जमाल पैदा होता है। और जब मानी आफरीनी होती है, जब कलाम में के मानी दिलकश हो जाते हैं, यानी उसके मानी जब हमारे दिल पर असर छोड़ते हैं, तो उसको हम सनाए मानवी कहते हैं। रियायत लफ्ज़ी भी एक ऐसी ही सन्नत का नाम है। कशाफ तनकीदी इस्तिलाहात
अबुल हसन हफीज सदीकी किताब है जिसमें वो रियायत लफ्ज़ी के हवाले से सैयद वक़ार अज़ीम की कि ये अल्फाज नकल करते हैं कि मशरिक़ की अदबी रवायत में पुरतकल्लफ़ अबारत का पहला इम्तियाज़ अल्फाज की एक ऐसी तरतीब है जिसमें सादगी और बेतकल्लुफ़ी और बेसाख्तगी की फितरी राह तर्क करके बात कहने वाला इन्हें तकल्लुफ़ और तसन्नुह के रिश्ते में जोड़ता है और इसी का नाम रियायत लफ्ज़ी है। यानी क्या करता है अदीब, क्या करता है शायर, क्या करता है कि वो सादगी और को छोड़ देता है, बेतकल्लुफ़ी को छोड़ देता है, बेसाख्तगी को छोड़ देता है, क्योंकि ये चीज़ें जो आमद के साथ वाबस्ता हैं उनको छोड़ के तो वो क्या करता है कि वो तसन्नुह के रिश्ते में जुड़ जाता है, वो तकल्लुफ़ के रिश्ते में बंध जाता है। इस इस्तिलाह ने, जैसा कि लखनऊ की माशरत आप देखें तो वो हमें एक पुरतकल्लुफ़ माशरत नज़र आती है। तो रियायत लफ्ज़ी की जो इस्तिलाह है उसने भी लखनऊ के ज़माने में अरूज हासिल किया। लखनऊ का माशरा दरअसल फारगुल बाल माशरा था। लोग हकीकत से नज़रें चुराते थे। मजलिसों में, महफिलों में वही लोग मकबूल होते जो लफ्ज़ों के इस्तेमाल पर अबूर रखते थे। लफ्ज़ी रियायतें जो थीं वो रियायतें महफिल में तफरीह का सामान होती थीं। मीर उनीस, जिनका तल्लुक़ लखनऊ से है और जिन्होंने कहा था कि उम्र गुजरी है इस दश्त की सयाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में, तो जिनके ख़ानदान के बहुत से लोग मरसिये से वाबस्ता थे, मीर अनीस, मीर खलीक, मीर ज़ाहक, मीर हसन, मीर अमामी, यानी 5 पुश्तें। तो उनसे किसी ने पूछा, क्योंकि लखनऊ में उस ज़माने में उस शायर को कमाल का शायर समझा जाता था जो रियायत लफ्ज़ी से वाबस्ता होता था, जो अपने कलाम में लफ्ज़ी रियायतें इस्तेमाल करता था। मीर उनीस से जब किसी ने पूछा कि आप लफ्ज़ी रियायतों और सनाए बदाई को पसंद करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आखिर लखनऊ में रहना है। रियायत लफ्ज़ी और तकल्लुफ़ व तसन्नुह दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लखनवी दबस्तान शेर व अदब में जब बात करता है तो लफ्ज़ की बाबत बात करता है। अगर रियायत लफ्ज़ी के हवाले से हमने कोई नसरी फन पारा देखना हो तो वो हमें रजब अली बेग सरूर की नज़र में नज़र आता है। अमानत लखनवी का नाम उर्दू अदब में रियायत लफ्ज़ी के लिए मशहूर है, लेकिन लखनऊ से वाबस्ता बहुत से शायरों ने इस सनद से काम लिया और अपने फ़न को, अपने शेरों को रियायत लफ्ज़ी से उनको मालामाल किया कि अपनी शायरी में ऐसे लफ्ज़ लाए, एक लफ्ज़ की रियायत से दूसरे लफ्ज़ लाना अगर आप लखनऊ की माशरत पर गौर करें तो चूँकि वो एक फारगुल बाल माशरत थी, लोग खोखली तहज़ीब के पीछे खुश हो रहे थे, तो ऐसी तहज़ीब में बड़े से बड़े लफ्ज़ जो थे वो कलाम में लाए जाते थे और उसी को
उस्ताद फन समझा जाता था जो पुरशकू अल्फाज का इस्तेमाल करता था। तो लखनऊ के बहुत से शायर, आतिश, नासिख और कई दूसरे शायरों ने अपनी शायरी में इस रियायत लफ्ज़ी से बहुत मदद ली है। इससे क्या हुआ? कि शायरी जो थी वो अल्फाज का गोरख धंधा बनकर रह गई। अगर हम दबस्तान दिल्ली और दबस्तान लखनऊ की बाबत भी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दबस्तान दिल्ली में दाखिलियत पाई जाती थी और लखनऊ में खारजियत पाई जाती थी, यानी खारिज से असर कबूल करते थे, मंजिर से असर कबूल करते थे। वो बात जो कि दिल पर असर रखती है, अंदर की एहसासात की, उससे वो दूर हो गए थे। तो ऐसे में रियायत लफ्ज़ी का जन्म ले लेना फितरी था। और होता क्या था कि लफ्ज़ी रियायतें जो थीं वो अक्सर मानी पर गालिब आ जाती थी, मफ़हूम पर गालिब आ जाती थी और बाज़ औक़ात महज़ रियायत लफ्ज़ी को मंजूम करने के लिए शेर कहा जाता, यानी उसके अंदर कोई मानी पोशीदा नहीं होते थे। सिर्फ एक जैसे अल्फाज को जोड़ देने का नाम जो था वो शायरी कहलाया और बहुत से अशार ऐसे तख्लीक किए गए जो अपने अंदर कोई ख़ास मानी नहीं रखते थे और इसमें एक लफ्ज़ की रियायत से दीगर अल्फाज तलाश किए जाते थे। और यूं शायरी जो थी वो सिर्फ और सिर्फ लफ्ज़ी मश्कबाजी का खेल हो गई थी। शेर देखिए, कब्र के ऊपर लगाया नीम ने दरख्त, बात मरने के मेरी तो कीर आधी रह गई। अब आप ये देखें, बात मरने के मेरी तो कब्र आधी रह गई। यानी नीम जो है, नीम का लफ्ज दो नीम कर देना, दो टुकड़े कर देना, आधा आधा कर देना, यानी जब हम ज़ाहरन करते हैं तो हमें यूं महसूस होता है कि नीम के दरख्त की बात की गई है। एक और बात साल बाद आपको बताऊं कि बाज़ औक़ात जब हम इन अशार पर गौर करते हैं तो जिस तरह इहाम कोई जो है अपने अंदर दो मानी लिए होते हैं, अक्सर औक़ात रियायत लफ्ज़ी में भी मुख्तलिफ मानी भी पोशीदा होते हैं। जैसा कि कब्र के ऊपर लगाया नीम ने दरख्त, यूं लगा कि जैसे कब्र के ऊपर नीम का दरख्त लग गया, लेकिन अगर इसी पे आप गौर करते हैं तो यूं महसूस होता है कि यानी जो दो नीम दरख्त था, दो हिस्सों में बटा हुआ था, वो लगाया और मेरी तो कब्र ही, यानी वो पूरा दरख्त भी नहीं लगाया कि उस बिल्कुल वो दो नीम हुआ पड़ा था, तो इसलिए मेरी तो कब्र ही आधी रह गई। यानी ये इस्तिलाह अगरचे आराइश सुखन के लिए इस्तेमाल होती है, मगर उनके बरचस्ता और बरमहल इस्तेमाल से कलाम में मानी खेजी और अफसर अफरीनी भी पैदा होती है। यानी लखनऊ तर्ज माशरत से हट के बात करें तो रियायत लफ्ज़ी जो है उसने कलाम में हुस्न भी पैदा किया है और उससे ये है कि कलाम की खूबसूरती में इजाफा तो हुआ ही है, उसके असर में भी इजाफा हो गया है। बहरहाल शायरी चाहे दाखिली हो चाहे खारजी हो, उसमें फ़िक्री पुख्तगी और फ़नी रियाजत, ये दोनों जो हैं इनका असर झलकता है। रियायत लफ्ज़ी को हम लफ्ज़ी मश्क बाजी कह लें, लेकिन ये है कि इसने उर्दू के ज़ख़ीरा अल्फाज में भी इजाफा किया है और आज जो है वो हम कह सकते हैं कि रियायत लफ्ज़ी के हवाले से ही, कि रियायत लफ्ज़ी से ही बहुत से अल्फाज जो हैं वो उर्दू ज़ुबान में दाखिल हुए, हमारे उर्दू के ज़ख़ीरा अल्फाज में इससे इजाफा हुआ। तो कोई भी तहरीक या कोई भी इस्तिलाह, यानी किसी भी इस्तिलाह ने जब किसी दौर में वो राइज रही है, जैसा कि हमने तासुबियत का देखा
کہ مصوری کے حوالے سے اس تحریک نے جنم لیا اور پھر آہستہ آہستہ یہ ادب سے وابستہ ہو گئی، اور وہ تاثر جو کہ پہلے دیکھنے سے، پہلے منظر سے جو ابھرتا ہے، اس کو ہم نے تاثریت کا نام دیا۔ اور جو دوسری اصطلاح آج ہمارے زیر غور رہی وہ تھی رعایت لفظی، یعنی ایک لفظ کی رعایت سے کلام میں دوسرے الفاظ لانا اور اس مفہوم کو اس کے ساتھ جوڑ دینا رعایت لفظی کہلاتا ہے۔ طالبات، اس لیکچر کو تیار کرنے میں ہم نے بہت سی کتابوں سے مدد لی۔ اس میں ابوالعجاز حفیظ صدیقی کی کشاف تنقیدی اصطلاحات سے مدد لی گئی۔ علاوہ ازیں ہم نے ڈاکٹر سلیم اختر کی کتاب تنقیدی اصطلاحات توضیحی لغت سے مدد لی۔ امین الرحمن کے مضمون جو کہ ادب لطیف میں شامل رہا، تاثریت، اس کو ہم نے حوالہ سازی کے لیے استعمال کیا۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کی ارسطو سے ایلیٹ تک وہ ہمارے پیش نظر رہی۔ سہیل احمد خان کی کتاب جو ہے اور ڈاکٹر سلیم الرحمن کی کتاب وہ ہمارے پیش نظر رہی۔ انسائکلوپیڈیا جو تھا اردو کا وہ بھی ہمارے پیش نظر رہا کہ اس میں تاثریت کے حوالے سے کون سے مفاہیم درج ہیں یا رعایت لفظی کے حوالے سے کون سے مفاہیم درج ہیں۔ تو طالبات، آج کا ہمارا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے۔ ادبی اصطلاح کے حوالے سے آج ہم نے کوشش کی کہ تاثریت اور رعایت لفظی پر بات کی جائے۔ طالبات، آپ نے مختلف اشعار کو دیکھنا ہے اور ان کو جمع کرنا ہے کہ کن اشعار میں رعایت لفظی کا استعمال ہوا ہے، اور تاثریت جو ہے وہ تو آپ کے سامنے ایک عملی کام ہے کہ مختلف شعراء کی شاعری جب آپ دیکھیں گے تو اس کے پڑھ کے جو تاثر آپ کے ذہن میں پیدا ہوا اس کو آپ الفاظ میں ڈھال دیں گے، جملوں کی شکل میں ڈھال دیں گے، تو اس سے آپ کو عملی طور پر اندازہ ہوگا کہ دراصل تاثریت یہی ہے۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صدف نقوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔